morning friends, my name is Mihir and today we are going to have lecture on. So from last part what we have covered active safety of vehicles. So what was included in active safety of vehicles? First of all we will see the difference in active and passive safety in very short time. Okay, so what is active safety? So active safety is chances of accident should be minimized, okay, or to prevent the chance of crash. It is included in active safety. And what is passive safety? If the accident occurs, injury or to the passenger and driver should be minimized. So active is to remove the chance or to neglect minimize the chance of accident, whereas passive is if the accident is occurred, then the injury should be very less to the passenger and driver. So this is the basic difference between active safety and passive safety. Now we will shortly notice what is active safety and what was included in active safety features. So first point was good visibility for driver's seat. Then the second point was anti-lock braking system. It is also known as anti-skid braking system. Then the adaptive cruise control. Then there was backup camera. Then there was reverse backup sensor. Then there comes electronic stability control, and then traditional control, and then collision mitigation braking system. These all 8 points were included in active safety. Okay, now today what we are going to do? What is what does passive system safety means. Okay, so today's topic is passive safety. So we will start it from next slide. So passive safety. So what I have told you, what is passive safety? So passive safety is the thing, if the accident occurs, then what are the things which save the driver and passenger from getting hit or from getting more injured. Okay, so we will see about passive safety. So first point here, it is given that seat belts. So during the event of crash, seat belts are designed to keep driver and passenger inside the vehicle. Okay, they also reduce the risk that driver collide with the steering wheel, dashboard or windshield. New seat belt designs have the following additional features that improve seat belt performance. Okay, now we will start with the seat belt, but let's discuss what it is. Okay, as we all know why we use seat belts and how we use seat belts, and now it is also compulsory to use seat belts. If you are not using seat belts while driving, or your co-passenger, that is passenger sitting beside driver seat, is not using a seat belt, then the fine is charged by the police. So this is the in general thing, or our daily thing what we see in our life. So we will read the definition again. First topic is our seat belt. Okay, so during the event of crash, seat belts are designed to keep drivers and passenger inside safe. So why is it designed? It is designed to keep the driver and passenger who are inside the vehicle safe. Okay, now how they help the drivers and passengers. Now see, they also reduce the risk of driver collision with steering wheel, dashboard or windshield. So how they help the driver and co-passengers? So they prevent or they reduce the risk of driver and all the passenger to collide on steering wheel or dashboard or windshield. So how does it help? So when the accident occurs, then if you are not wearing the seat belts, then what is going to happen? You will jump on the seat, or you will get the jerk on the seat, and your head or your chest will bang against the steering wheel or dashboard or windshield. So what will happen because of it? Because of it, your head or chest will get banged and there will be issue, or you will get hurt. Okay, इन जनरली हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो आपके लाइफ के लिए थ्रेट हो सकता है. ठीक है, अगर आपका कोलिजन हेड का
स्टीयरिंग व्हील पे बहुत ज़ोर से हुआ, बहुत ज़ोर से जर्क मिला और आपको बहुत ज़ोर से हुआ, तो हो सकता है कि आपका जो सर है, आपका हेड है, उस वहाँ पे बहुत हानि हो सकती है या फिर बहुत मार लग सकती है। ठीक है। नाउ न्यू सीट बेल्ट डिज़ाइन हैव द फॉलोइंग एडिशनल फीचर दैट इम्प्रूव सीट बेल्ट परफॉर्मेंस। सो जो न्यू सीट बेल्ट डिज़ाइन है उसमें कोई एडिशनल फीचर्स है, ठीक है, जिससे हमारा सीट बेल्ट का परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है जो हमारा इम्प्रूव करता है सीट बेल्ट की डिज़ाइन का, तो वो है एडजस्टेबल अपर बेल्ट्स। लेट्स सी व्हाट इज एडजस्टेबल अपर बेल्ट्स नाउ। सो एन एडजस्टेबल अपर बेल्ट्स to change the position of the shoulder strap to accommodate a person's size. These features increase our shoulder belt comfort. Okay, now see, adjustable upper belt का क्या काम है? An adjustable upper belt to change the position of shoulder strap. जो shoulder strap का जो हमारा होता है, जो diagonally जाता है एक shoulder से उस नीचे की ओर जाता है कमर की तरफ, ठीक है, to accommodate a person's size. These feature increase our shoulder belt comfort. अब जो है इस पॉइंट में हमें क्या बताया गया है, जो स्ट्रैप जो होता है हमारा अपर बेल्ट का, जो हम एक शोल्डर से लेके ऐसा डायगोनली नीचे अटैच करते हैं कमर की तरफ, तो पहले क्या होता था, वो जो स्ट्रैप है उसका साइज जो है, माने कि उसकी लेंथ जो है वो लिमिटेड रहती थी। तो बहुत बार जो होता था कि ये जो ओबेस लोग हैं या फिर जो हेल्दी लोग हैं उनके लिए वो स्ट्रैप जो है वो कम पड़ता था, वो इतना ज़्यादा नहीं पड़ता था। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, एडजस्टेबल कर दिया, वहाँ पे रोलर लगा दिए, रोलर से और नीचे टेंशनर लगा दिए। तो उसके वजह से क्या हुआ, आपका जो साइज़ है स्ट्रैप का वो भी बढ़ाया गया। फिर जब आपके हिसाब से जैसे आपको जितनी आपको लेंथ चाहिए उतना आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे पुल करके आप बढ़ा सकते हैं। तो उस हिसाब से आप बढ़ा के वो लॉक कर सकते हैं। सो यहाँ पे बताया गया है आपको कि उसकी पोजीशन की स्ट्रैप जो है वो अकोमोडेट साइज नहीं करती थी, वो जो साइज़ जो है पर्सन की वो अकोमोडेट नहीं करती थी, तो उसका उन्होंने चेंज किया। ठीक है, देखिए हम बताते हैं एडजस्टेबल अपर बेल्ट, एन एडजस्टेबल अपर बेल्ट टू चेंज द पोजीशन ऑफ शोल्डर स्ट्रैप to accommodate a person's size. This is important. So this feature increase our shoulder belt comfort. So ये जो feature है ये shoulder belt का comfort increase करता है, ठीक है। Now let's talk about the third point. What is that? Seat belt pretensioner. प्रीटेंशनर ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सीट बेल्ट प्रीटेंशनर, these are retract the seat belt to remove excess slack element instantly in crash, since pretensioner are not powerful enough to pull body back into seat in the event of impact. ठीक है, देखिए सीट बेल्ट प्रीटेंशनर का बताता हूँ आपको। अब एक बार आप गाड़ी में ट्राई करके देखिए, आप सीट बेल्ट जब लगाते हो तो आप धीरे धीरे एक साइड से ऐसा सीट बेल्ट खींचते हो और फिर यहाँ पे लगाते हो। एक बार ट्राई करके देखिए कि सीट बेल्ट आप लगाते हो ऐसे ज़ोर से खींचिए तो ऐसा लॉक हो जाता है। वो लॉक क्यों होता है? वो लॉक होता है हमारे प्रीटेंशनर की वजह से। वो प्रीटेंशनर क्यों दिया गया रहता है? देखिए जब हम सीट बेल्ट लगाते हैं, अगर हमें जर्क बैठा तो वो प्रीटेंशनर ऐसे कुछ पोजीशन में लगाते हैं कि आप अगर सामने आप अगर जर्क कर रहे हो या फिर आप डैशबोर्ड पे आपको लगने वाला है, आपको हेड को या फिर चेस्ट को लगने वाला है डैशबोर्ड, तो एट लिमिटेड डिस्टेंस, मतलब उसके 5 या 6 इंच पहले ही वो बेल्ट लॉक होता है। वो लॉक की उस वजह से होता है, वो लॉक होता है हमारे प्रीटेंशनर की वजह से, ठीक है। तो प्रीटेंशनर का काम क्या है हमारा? उसका काम ऐसा है कि जब हम बेल्ट लगाते हैं तो वो अडेप्ट कर लेता है कि इतनी साइज लगने वाली है। उसके बाद अगर हमें जर्क लगा और हम ऐसे आगे चले गए बहुत स्पीड से, फिर वो प्रीटेंशनर जो है वो लॉक हो जाता है और आपको कुछ डिस्टेंस से पीछे रखता है डैशबोर्ड से, जिसकी वजह से आप हिट नहीं होते डैशबोर्ड पे,
ठीक है, तो ये रोल है हमारा प्रीटेंशनर का। सो सी सीट बेल्ट प्रीटेंशनर, दीज आर रिट्रैक्ट द सीट बेल्ट टू रिमूव एक्सेस लैग। किसके लिए होता है? जो एक्सेस लैग होता है वो रिमूव करता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा हम जर्क जब भी खाते हैं तब हमारा जो इम्पैक्ट का चांसेस है हेड का डैशबोर्ड वगैरह के ऊपर वो कम हो जाता है। हेलमेट इंस्टेंटली इन क्रैश सिंस प्रीटेंशनर आर नॉट पावरफुल इनफ टू पुल बॉडी बैक इनटू सीट इन द इवेंट ऑफ एन इम्पैक्ट। देखिए बहुत बार कैसा होता है, जो आगे देखने वाले हम जो 5 पॉइंट बेल्ट है, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट ऐसे जो बेल्ट है उनका सिस्टम अलग है। तो वो जो हमारी बॉडी है ना वो पुल करके रखते हैं, सीट को ऐसे चिपका के रखते हैं। प्रीटेंशनर का वैसा नहीं है, प्रीटेंशनर अलग है। प्रीटेंशनर बहुत पहले के गाड़ियों में बहुत यूज़ किया जाता था, ठीक है, अभी भी यूज़ किया जाता है। और अब देखते हैं हम कि ये स्लाइड में हम क्या क्या देखें, क्या क्या सीखें। सो सीट बेल्ट, पहला टॉपिक था हमारा सीट बेल्ट। सो ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ क्रैश, सीट बेल्ट्स आर डिजाइंड टू कीप ड्राइवर एंड पैसेंजर इनसाइड the vehicle. Okay, reduce the risk of driver to collide on steering wheel, dashboard or windshield. New seat belt design have the following additional feature to improve the best performance. So first है हमारा adjustable upper belt, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सीट बेल्ट प्रीटेंशनर, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट में आपको क्या याद रखना है, तो एडजस्टेबल अपर बेल्ट। एडजस्टेबल अपर बेल्ट में मैंने आपको बताया कि पर्सन साइज की वजह से को अकोमोडेट करता है। तो एन एडजस्टेबल अपर बेल्ट टू चेंज द पोजीशन ऑफ द शोल्डर स्ट्रैप टू अकोमोडेट अ पर्सन साइज, टू चेंज द पोजीशन ऑफ शोल्डर स्ट्रैप टू अकोमोडेट पर्सन साइज। ओके, दिस फीचर इंक्रीज और शोल्डर बेल्ट कंफर्ट, ठीक है। जो ब्लू में मार्क किया है वो आपको इस पॉइंट में याद रखना है। उसके बाद सीट बेल्ट प्रीटेंशनर, सो इसमें क्या रहता है, सो दीज आर रिट्रैक्ट द सीट बेल्ट्स टू रिमूव एक्सेस लैग। जो एक्सेस लैग रहता है हमारा वो निकालने के लिए प्रीटेंशनर रहता है। सिंस प्रीटेंशनर आर नॉट पावरफुल इनफ टू पुल बॉडी बैक, it is not R5 बेल्ट और 6 बेल्ट टाइप, पॉइंट बेल्ट टाइप। सो इसका क्या है, तो ये हमें बस स्लैग नहीं देता सीट बेल्ट में, ओके। और ये इतना पावरफुल भी नहीं कि वो बॉडी को पुल करके रखे बैक, ठीक है, सीट को चिपका के रखे बॉडी, ठीक है। सो सीट बेल्ट इज कॉल्ड एज सेफ्टी बेल्ट। नाउ आई विल टॉक अबाउट सीट बेल्ट। व्हाट इज सीट बेल्ट? आई विल टॉक इन जनरल। सो सीट बेल्ट इज अ सेफ्टी बेल्ट। इट इज डिजाइन्ड टू सिक्योर द ऑक्यूपेंट ऑफ अ व्हीकल अगेंस्ट हार्मफुल मूवमेंट एंड एक्सीडेंट। सो सीट बेल्ट सेफ्टी बेल्ट है, तो उसका काम क्या है कि ऑक्यूपेंट जो है, जैसे ड्राइवर हुआ हमारा या पैसेंजर हुआ, उसे हार्मफुल मूवमेंट ऑफ एन एक्सीडेंट से बचा के रखें, ओके। और सडन स्टॉप, अगर आपने ज़ोर से ब्रेक लगाया तो आपका सडन स्टॉप जो हुआ उसके दौरान आपका इम्पैक्ट, आपका चेस्ट या हेड का इम्पैक्ट डैशबोर्ड या स्टीयरिंग पे ना हो, इसलिए आपको वो बचाता है, ओके। देन सीट बेल्ट्स आर इंटेंडेड टू रिड्यूस इंजुरीज बाय स्टॉपिंग द वेयर फ्रॉम हिटिंग हार्ड इंटीरियर एलिमेंट्स। सो मैंने आपको बताया जैसे डैशबोर्ड और आपका स्टीयरिंग व्हील हुआ, उस पर इम्पैक्ट आपका ना हो और आप सेफ रहे, इससे आपको बचाता है। सो सीट बेल्ट्स आर इंटेंडेड टू रिड्यूस इंजुरीज बाय स्टॉपिंग द वेयरर फ्रॉम हिटिंग हार्ड इंटीरियर एलिमेंट्स ऑफ द व्हीकल और अदर पैसेंजर्स, ओके। नाउ आर इन करेक्ट पोजिशन फ्रॉम द एयरबैग टू डिप्लॉय एंड प्रिवेंट द पैसेंजर फ्रॉम बीइंग थ्रोन फ्रॉम द व्हीकल। देखिए आपको पता है कि इम्पैक्ट होने के बाद आपका क्या होता है, एयरबैग्स रिमूव होते हैं, और एयरबैग्स तब भी एक्टिवेट होते हैं जब आपने सीट बेल्ट पहना रहता है। तो वो जो मैकेनिज्म है वो आपको अभी सीखने के लिए नहीं है, वो आप आगे सीख सकते हो। तो जैसे ही आपका इम्पैक्ट होता है, एक गैप रहता है आपका डैशबोर्ड या फिर आपका स्टीयरिंग व्हील और आपके बीच में, आफ्टर वेयरिंग ए सीट बेल्ट, ओके।
तो वो गैप क्यों रहता है, ताकि अगर एयरबैग आए तो आपका जो इम्पैक्ट के बाद अगर आप बाहर फेंके जा रहे हो, आप जर्क के बाद अगर आप बाहर व्हीकल के बाद बाहर अगर आप फेंके जाओगे तो वो ना हो, इसलिए आपका जो गैप रहता है वो होता है, और फिर एयरबैग डिप्लॉय होता है, और फिर इट प्रिवेंट्स द पैसेंजर फ्रॉम बीइंग थ्रोन फ्रॉम द व्हीकल. Okay, what does it do? It prevents the passenger from being thrown from vehicle. Okay, now next point, seat belts also absorbs energy by being designed to stretch during any sudden deceleration. See, seat belts also absorb energy. It also absorb energy. ऐसा नहीं कि वो एकदम क्या बोल सकते हो उसे कि रिजिड है. तो अगर रिजिड होगा तो रिजिड से जो ह्यूमन या पैसेंजर है या ड्राइवर है, अगर इम्पैक्ट के दौरान वो अगर सीट बेल्ट रिजिड होगा तो उससे भी उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है. तो उसे थोड़ा हमने जो है वो रिजिडिटी नहीं रहती, उसको स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा रहती. तो उस स्ट्रेचेबिलिटी की वजह से क्या होता है, उसको वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. ओके, इट इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट it can be get stretched and it can absorb energy during sudden deceleration. Okay, so that there is less speed differential between passengers body and their vehicle interior. So क्यों किया जाता है, क्योंकि उसकी लेस स्पीड डिफरेंस रहे किन दो चीज़ों के बीच में, पैसेंजर्स बॉडी एंड व्हीकल इंटीरियर के बीच में. ओके, एंड ऑल्सो टू स्प्रेड द लोडिंग ऑफ इम्पैक्ट ऑन पैसेंजर्स बॉडी. सो जो इम्पैक्ट होने वाला है हमारे बॉडी पे वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो, इसके लिए जो है वो जो बेल्ट जो है वो डिज़ाइन किया रहता है हमारा स्ट्रेचेबिलिटी के ऊपर. ठीक है, अगर वो सडन इम्पैक्ट जो हुआ हमारा, अगर उसके दौरान अगर वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं हुआ, अगर वो सिर्फ पर्टिकुलर एरिया पे ही स्प्रेड हुआ, देन इट विल ऑल्सो अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी, दैट इज पैसेंजर एंड ड्राइवर्स. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, आफ्टर द पैसेंजर्स बॉडी हिट द कार इंटीरियर, एयरबैग और सीट बेल्ट is that the internal organs hitting the rib cage or skull. So after passenger body hit the car interior, airbags or seat belts, is that the interior organ hitting the rib cage or skull. तो rib cage और skull ये दो चीज़ें हैं जो हमें प्रोटेक्टेड रखना है ड्यूरिंग हिटिंग. तो इस वजह से एयरबैग और सीट बेल्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उस टाइप में वो डिज़ाइन की जाती है. तो द फोर्स ऑफ दिस इम्पैक्ट इज द मैकेनिज्म थ्रू विच कार क्रैशेस कॉज डिसेबलिंग और लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी. मैंने आपको क्या बताया था, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी हो सकती है अगर आपका रिब केज या फिर स्कल को हार्म होता है या फिर लगता है, तो लाइफ भी जा सकती है, मतलब जान भी जा सकती है. सो इट कैन बी अ लाइफ थ्रेटन इंजरी. सो द फोर्स ऑफ इम्पैक्ट इज द मैकेनिज्म थ्रू विच अ कार क्रैशेस. तो इट इज अ फोर्स ऑफ इम्पैक्ट ड्यू टू विच द कार क्रैशेस यूजिंग डिसेबलिंग. और डिसेबलिंग मतलब हाथ पैर टूटना, या फिर डिसेबलिंग मतलब आपका कुछ भी हो सकता है, अंधा होना, हाथ पैर टूटना. सो दिस इज डिसेबलिंग. और लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी, आपकी जान भी जा सकती है. ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी डिसिपेटिंग एंड द स्पीड रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी. सो द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी डिसिपेटिंग एंड स्पीड रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी, क्रम्पल जोन, सीट बेल्ट, एयर बैग्स, पैडेड इंटीरियर आर डिजाइंड टू वर्क टुगेदर एज अ सिस्टम. सो देखिए ऐसा होता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक चीज सिस्टम जो है वो आपको हेल्प करती है आपका एक्सीडेंट से बचाने के लिए या फिर आपका सडन इम्पैक्ट से, ऐसा नहीं है. सो 2-3 सिस्टम जो है वो साथ में आपका सिक्वेंशियली यूज़ होता है. वो है क्रम्पल जोन, फिर होता है आपका सीट बेल्ट, उसके बाद आता है आपका एयर बैग्स, उसके बाद आता है आपका पैडेड इंटीरियर. पैडेड इंटीरियर ये चीज़ रहती है अगर आपका इंटीरियर जो है डैशबोर्ड का या फिर आपका स्टीयरिंग व्हील का, तो बहुत बार आपने देखा होगा स्टीयरिंग व्हील पे रबर चढ़ाया रहता है,
कवर चढ़ाया रहता है। फिर बहुत बार डैशबोर्ड पे जो हमारा सामने का एरिया है वहाँ पे पैडेड इंटीरियर किया रहता है रबर का। सो वाई दिस इज डन टू reduce the force of impact, reduce the force of this final impact. So this is done to save the person from disabling or from life threatening injury. So ये जो sequential ऑपरेशन है ये सब टेक्नोलॉजीज का ये क्यों किया जाता है, तो ताकि आपकी जान बची रहे और डिसेबलिंग ना हो। ठीक है, तो ये था सीट बेल्ट के बारे में।